let's have the example to understand it in more brief. We have the one multi-way tree over here, and as we know that the multi-way tree means what we can store more than one element in a particular node in any node, and it's depend on the means the order of the tree. So here we can see that the maximum number of keys in this node, you can see it is 1 2 3 4 5. So that's why the order of tree in that situation it is 6 over here. Fine. So let's try to find out the one element. Let's suppose that it is 8. I'm going to search it out. How we'll perform the searching operation here. So whenever we are trying to search any element, we have to start from the root itself. See here we have the two differences. Whenever we are trying to insert a new element, so we'll go on the depth first. So first preference we are giving it to the leaf node. If suppose that leaf node is full, and then on that situation we'll break it out, and afterwards we'll send the middle element at the upward direction. Otherwise we give the first preference to the leaf node while insertion. In the similar manner we are performing whenever we are performing searching. We will start the searching from the root node. So if suppose that we have to search out this 8, so what we'll do, we'll compare this element which we are going to search out with the root element. If it is equal, then we'll return the one statement like we got the element, we find it out. Otherwise what we'll do, we'll compare with it. See, only three situations can be there. Either we can have the element less than of the root node, or it can be a greater than of root node, or it can be a equal to the root node. So first we'll try to compare with this. So if 8 is not equals to 22, then we'll return the successful situation. Otherwise we'll check whether this 8 is having the lesser value in compared to 22 or greater value. So here we can see that 8 is having the lesser value, so we'll come to the left child of this 22 or root node. So we'll come here. Here once again we have the more than one element, so one by one I'll compare with each element. So first I'll compare with the 5, whether 5 is equals to 8. If it is not, so once again two situations can be there. Either it can have the lesser value, it can have the greater value. If having the lesser values, we'll go into the left child of this node. Or otherwise we'll check whether it is having the greater value or less than 10, then we'll come into this central node. Otherwise we'll go into the right one node. So here we are going to compare. It is having the greater value in compared to 5, and having the lesser value in compared to 10. So we'll come in this middle node. And once again, we'll start from the beginning. We'll compare it whether 8 is equals to 6. If it is not, then we'll check with the next element. Here we are finding out the 8 is equals to 8. That's why search successful. So this is the way through which we can search out any element in a multi-way search tree. One more situation we are taking here. Let's suppose that we are trying to find out the 12. So once again we'll compare with the root node. 12 is having lesser value, will come here. 12 is having greater value in compared to 10, so that's why we'll come here. 12 is having lesser value in compared to 14, so we'll come here. And once again we'll compare with this first element having greater value, so we'll come here. Once again we'll compare with this 13 having lesser value, but this 12 is not present here. So finally we can pass the message that element has not found. Okay, so this is the way through which we can perform the searching operation in multi-way search tree. Now let's try to understand how this multi-way searching is more beneficial in compared to the binary search tree. Why we are going through with the multi-way searching tree, and why it is more popular than the binary search tree. So we'll see over here. See, normally the height of binary search tree, that is log n, and this log n is nothing but the base 2 log n. Got it? And let's suppose that n number of elements are present in binary tree, and as per the binary search tree we'll have the two child, one maybe a left child, or one is another is a right child. Always left child will have the lesser value in compared to the root node or parent node, and the right child will have the greater value in compared to its parent node. Here you can see how many number of nodes we have: 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. And what is the height of, if we'll see, so maximum height is 3. We can see that कि यहाँ पे हमें 3 जो डेप्थ के हैं या हाइट के हैं, हमें मैक्सिमम 3 इसकी हाइट है इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री की.
बट हियर इफ विल सी यही सेम एन 9 नंबर ऑफ नोड, जैसे यहाँ 9 वैल्यूज स्टोर हुई हैं बाइनरी सर्च ट्री में, वैसे ही 9 वैल्यूज यहाँ भी स्टोर हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन दो वी हैव 3 मोर स्पेसेस, वी कैन स्टोर मोर एलिमेंट्स, बट जो यहाँ ट्री की जो हाइट है वो ओनली 1 है। तो यू नो आप ये देख सकते हो कि यहाँ 9 एलिमेंट में अगर हमको ये लास्ट एलिमेंट सर्च करना है तो हमको 3 टाइम ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी डेप्थ में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब जाके हम इस 13 को एक्सेस कर पाएंगे। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी कैन इफ एनी एलिमेंट हैविंग लेस देन 10 सो विल हैव दी एवरीवेयर, एवरीवेयर हमें कॉस्ट 1 ही आनी है, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो मैक्सिमम 1 है। दैट्स वाई हमें कॉस्ट 1 ही आएगी अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जाके हमें सर्च करना है, डिलीट करना है, या किसी लोकेशन पे इंसर्ट करना है इस सिचुएशन के लिए। तो हियर यू कैन सी दैट कि जो यहाँ जो हाइट है, जब हमारे पास में 2 वे ट्री था तो बेस 2 था, और इसी तरीके से जब यहाँ 3 वे ट्री है तो ये जो बेस है यहाँ पे वो 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से जब अगर ये 4 वे ट्री है तो बेस 4 हो जाता है। बाकी ये सेम रहता है log n, लेकिन यहाँ जो बेस है वो चेंज होता जाता है। 5 वे ट्री है तो बेस 5 हो जाएगा। सो बाई दिस वे वैल्यूज कैन बी चेंज ओवर हियर। अब आप यहाँ पे इजी गोइंग वे पे देख के सीधे सीधे कह सकते हो कि मल्टी बेस ट्री इज मोर बेनिफिशियल और मोर यू नो मीन्स cost effective in compared to the binary search tree. Let's try to understand the node representation of M-way search tree. सो ऑब्वियस है यहाँ पे जो डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो नोड्स में स्टोर होते हैं, तो नोड का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो किसी भी एमवे सर्च ट्री के एक पर्टिकुलर नोड में ये 3 चीज़ें होंगी। पहला तो होगा इन यूज वेरिएबल, दूसरा कीज होंगी, वो भी m-1 कीज होगी, m इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द ट्री, और जो ऑर्डर ऑफ द ट्री होता है उतने ही नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे। तो हर एक चाइल्ड की नोड के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास में ये एक पॉइंटर वेरिएबल हमने ले लिया। तो इस तरीके से 3 चीज़ें होंगी किसी एक नोड के अंदर में। अब मैटर आता है कि ये इन यूज क्या है। सी अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरे डायग्राम में, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, लेकिन अब स्टोर कितने हैं, 2 एलिमेंट स्टोर हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो इन यूज है वो इन यूज का काम होगा ये बताना कि हाउ मैनी नंबर ऑफ कीज आर ऑलरेडी स्टोर। सो जब भी हम कोई डेटा एलिमेंट स्टोर करने आएंगे तो हम पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर ऑलरेडी ये 3 है और ऑर्डर भी हमारा 3 था। सो चूंकि यहाँ पे ऑर्डर, अगर हम ऐसी सिचुएशन की बात करें, हम यहाँ पे ये ऑर्डर 4 है एक्चुअल में। तो अगर ऑर्डर 4 है और ऑलरेडी 3 एलिमेंट स्टोर हैं तो वी कैन नॉट इंसर्ट एनी एलिमेंट ओवर हियर, तो हम अनदर बेस्ट प्लेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये चेकिंग के लिए वेरिएबल यूज होता है कि कितने एलिमेंट अभी तक स्टोर हो चुके हैं। दूसरा, जैसा कि आपको बता ही दिया है, कीज का एरे होगा, यानी इट मीन्स डेटा एलिमेंट जो हमें स्टोर करना है उनका एरे होगा। और इसी प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल होगा जिसका काम होगा चिल्ड्रन नोड को, चाइल्ड नोड के एड्रेस को होल्ड करने का काम करना। आगे चलते हैं। सर्च ऑन दी एमवे सर्च ट्री इज सिमिलर टू दैट बाइनरी सर्च ट्री की ही तरह होती है, बस ये है कि बाइनरी सर्च ट्री में एक सिंगल कंपैरिजन होता है, क्योंकि हर एक नोड में एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, और यहाँ पे मोर देन 1 कंपैरिजन होता है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं किसी नोड में। नाउ कम टू द 2 4 ट्री। हम यहाँ समझते हैं तो 2 4 3 इज नथिंग बट द वी कैन से दैट 2 3 और 4 ट्री, यानी यहाँ पे किसी भी नोड के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 3 चाइल्ड हो सकते हैं, और 4 चाइल्ड हो सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 4 चाइल्ड होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 2 चाइल्ड हैं तो ऑब्वियस जो की एलिमेंट है वो एक ही स्टोर होगा। अगर 3 चाइल्ड हैं तो 2 की एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 4 चाइल्ड हैं तो 3 की एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। ओके, एंड द नोड विद के आइटम्स हैज द के प्लस 1 चिल्ड्रन, वही नियम के अनुसार कि जितने कीज होंगे उससे प्लस 1 चिल्ड्रंस होंगे। ऑल लीव्स आर ऑन। अच्छा, इसका एक बेनिफिट है कि इसमें जितनी भी लीव्स होती हैं वो सेम लेवल पे होती हैं। सेम लेवल पे लीव होने का क्या पर्पज है ये भी वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं जो हाइट बैलेंस ट्री है उसी रूल को फॉलो करता है ये भी, कि जिसमें ऑल लीव्स सेम लेवल पे होंगी, जिससे कि हमारा ट्री बैलेंस बना रहता है। और ट्री के बैलेंस होने से एक बेनिफिट होता है कि ट्री की हाइट एक्सीड नहीं करती है, एक लिमिटेड साइज मेंटेन रहती है, जिससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑपरेशन को परफॉर्म करने पे वो कम होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इस पर्टिकुलर ट्री का जो ऑर्डर है दैट इज 4, तो 4 होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। और चूंकि ये यहाँ 2 की एलिमेंट है तो 3 चाइल्ड हैं, और अगर एक्स्ट्रा की एलिमेंट आता है तो फिर एक चाइल्ड और बढ़ जाएगा।
तो 2 4 3 का आपने देखा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 4 है, मैक्सिमम ऑर्डर हमने 4 लिया हुआ है, और ऑर्डर 4 होने की वजह से इसमें इस पर्टिकुलर ट्री में हर एक नोड में मिनिमम और मैक्सिमम 3 एलिमेंट ही स्टोर किए जा सकते हैं। नाउ अब हम इसमें एक इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि सिचुएशन कैसे डील होती है अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो। तो सबसे पहला तो काम हमको करना है कि अप्रोप्रिएट लीफ ढूंढना, क्योंकि जब हम इंसर्शन करते हैं तो हमेशा लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं, तो हमें अप्रोप्रिएट लीफ ढूंढनी है। इफ देर इज ओनली 1 और 2 आइटम, अब चूंकि क्या है ऑर्डर 4 है तो मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। अब अगर उसमें केवल 1 या 2 ही एलिमेंट स्टोर है तो फिर एक नया एलिमेंट और इंसर्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर रूम अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी 3 एलिमेंट है, तो हमें मिडिल से इसको ब्रेक करना होगा, मिडिल पर्टिकुलर जगह से। और मिडिल से ब्रेक करने के बाद जो एलिमेंट मिडिल से ब्रेक हुआ है उसको हमको पेरेंट पे लेके जाना है, यानी उसके पेरेंट नोड पे लेके जाना है। इस प्रकार से जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने ब्रेक किया है वहां से 2 चाइल्ड बढ़ जाएंगे, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। इसको सिचुएशन को हम यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दैट ये हमारा ट्री था, वही जो हमने देखा। अब हमें यहाँ 80 इंसर्ट करना है। 80 अगर इंसर्ट करना तो लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं, तो 80 का अप्रोप्रिएट कौन सा नोड होगा ये यहाँ से चेक होगा कि 80 कंपेयर हुआ 10 से ग्रेटर देन है, 45 से ग्रेटर देन है, तो दैट्स व्हाई यू विल नॉट स्टोर इट हियर। व्हाट यू विल डू, चूंकि 45 से बड़ा है तो 45 के राइट साइड में आएगा, और राइट साइड में आने की वजह से किस नोड पे आएगा, यहाँ पे आप जहाँ पे आओगे। वापस कंपैरिजन होगा, 70 से ग्रेटर देन है बट 90 से लेस देन है, तो दैट्स वाई 80 का जो प्रॉपर प्लेस है वो यहाँ है, 80 को यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए। लेकिन 80 यहाँ पे अगर आप स्टोर करते हो तो क्या सिचुएशन आएगी, ओवरफ्लो की, क्योंकि हमारे नियम के अनुसार तो चूंकि ऑर्डर 4 है तो दैट्स वाई मैक्सिमम 3 एलिमेंट ही स्टोर हो सकते हैं, तो अब इसको मिड से स्प्लिट करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे 80 के आते ही इसकी जो संख्या हो गई, जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए वो हो गए 4, और 4 को अगर हम मिडिल से इसको मिडिल से ब्रेक करते हैं तो 4 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स हमको सेकंड नंबर वाले प्लेस से हमको इसको ब्रेक करना है। सेकंड वाले प्लेस में ऑब्वियसली 80 स्टोर होगा, तो ये 80 चला जाएगा पेरेंट पे, और 80 जब पेरेंट पे चला जाएगा तो ये ब्रेक जो हुआ तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट और राइट साइड में कुछ एलिमेंट हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो 80 को ब्रेक करने पर, 80 से ब्रेक होने पर 80 ऊपर चला गया, और 80 का एक लेफ्ट चाइल्ड हो गया 70 और राइट चाइल्ड हो गया 90 एंड 100। So split and move middle element to the parent. So this is the way through which we can perform the insertion operation in 2 4 tree or any MBA tree. So here we'll thoroughly go through with all these different kind of trees in next session, in which we'll first study the B tree. In see MBA tree में कोई restriction नहीं है कि लीफ किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन दी ऑर्डर। बट B ट्री में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि ये बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होता है, और इसमें जितनी भी लीव्स होंगी वो सेम लेवल पे ही होंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्री की हाइट है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी, जो एबीएल ट्री का कॉन्सेप्ट है, समथिंग लाइक दैट। 2 3 ट्री ऑर्डर 2 या 3 हो सकता है, मैक्सिमम 3 ऑर्डर हो सकता है। देन बी प्लस ट्री का एक एडवांटेज है कि सर्च विल लैंड अप ओनली एट द लीफ नोड। बी ट्री में क्या है, आपकी जो सर्चिंग है इंटरनल नोड्स में भी आपको एलिमेंट मिल सकता है, जैसे मैंने जब इससे पहले एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि जब हम एलिमेंट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे 8 हमको इंटरनल नोड पे मिला था। और जबकि अगर हम बात करें कि लीफ नोड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ बी बी प्लस ट्री की बात करें, तो उसमें केवल और केवल एलिमेंट आपके लीफ नोड पे ही स्टोर होगा। इससे ये फायदा मिलता है कि बी ट्री में अगर हम एलिमेंट को सर्च करने जाते हैं तो हमें ऑल पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है, हर नोड्स को चेक करना होता है, जबकि बी प्लस ट्री में हम केवल और केवल लीफ नोड को ही चेक करते हैं। तो यानी कि हाफ ऑफ दी नोड्स हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इंटरनल नोड्स हमें चेक नहीं करना, और एलिमेंट्स हमेशा लीफ नोड में ही प्रेजेंट होगा। तो यहाँ थोड़ा सर्चिंग और बेटर होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मच बेटर हो जाती है, इट मीन्स रिड्यूस हो जाती है। देन बी स्टार ट्री भी एक स्पेशल टाइप का ट्री है जिसको हम स्टडी करेंगे आगे। So hope you understood all those things, and if you have any doubts we'll discuss all of them. Thank you everyone.